অভিযানৰ অন্যতম ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আহি উপস্থিত হৈছো এইটুকুৰি ঠাইত আৰু এই ঠাইটুকুৰা হৈছে শিৱসাগৰৰ ডিমৌস্থিত প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মাকুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়। আৰু আজি আমি ইয়ালৈ অহাৰ এটাই মূল কাৰণ হৈছে বিশ্বৰ শান্তি। আসলতে প্ৰত্যেকগৰাকী মানুহে যিমান টকা পইচা ইনকাম নকৰক, যিমান পৰিয়াল নাথাকক, কিন্তু মনৰ শান্তি নহ'লে কিন্তু ক'তো আসলতে থাকি ভাল নালাগে। আসল বস্তুটো হৈছে মনৰ শান্তি। আৰু তাৰ কাৰণে মই ইয়াতে যেতিয়া আহিছিলোঁ দেখিছিলোঁ এটা পিচফুল এৰিয়া এটা ইয়াতে আছে। খুব সুন্দৰভাৱে সকলো মানুহে ইয়াতে দেখিছোঁ বগা সাজ পৰিধান কৰিছে। আৰু এই ঠাইটুকুৰা আসলতে মই ক'বলৈ গ'লে প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ অলপ দূৰত আছে। আৰু তাৰ কাৰণে আজি আমি ইয়াতে দুগৰাকী ব্যক্তিৰ লগত কথা পাতিম। তাৰে প্ৰথমে ইয়াতে থকা ৰিট্ৰিট চেণ্টাৰৰ ডিমৌৰ সঞ্চালিকা বাইদেউ আছে আমাৰ লগত। বাইদেউৰ নাম হৈছে ৰজনী দিদি। আৰু মই প্ৰথমে আপোনাক আমাৰ ইউটিউব চেনেল অভিযান দা মিছনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথমে আপুনি মোক কওক, ৰজনী দিদি আপোনাৰ টাইটেল নাই নেকি? মোৰ টাইটেল হৈছে ব্ৰহ্মাকুমাৰী ৰজনী। হয়, মই প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মাকুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় এটা ছাত্ৰৰ নিচিনা ক'ব পাৰোঁ নিজকে। পৰমপিতা পৰমাত্মাৰ সন্তান, প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মাৰ সন্তান, যেনেকৈ ৰাজাৰ সন্তান ৰাজকুমাৰ ৰাজকুমাৰী বুলি কোৱা যায়, এনেকৈ এই মই ব্ৰহ্মাৰ সন্তান ব্ৰহ্মাকুমাৰী বুলি নিজকে কওঁ। তো মোৰ টাইটেল হৈছে ব্ৰহ্মাকুমাৰী ৰজনী। আৰু দিদি মোক মৰমত সিহঁতি মাতে, গতিকে দিদি বুলি কৈ দিয়ে। হয়, আৰু ইয়াতে আমি যি ৰিট্ৰিট চেণ্টাৰটোত আহিছোঁ দেখিছোঁ এটা বিশাল এৰিয়া। আৰু ইয়াতে আমি গুণমুগ্ধ আপোনালোকৰ ইয়াত দেখিছোঁ। আচলতে ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্যটো কি? আমাৰ ৰিট্ৰিট চেণ্টাৰ বনোৱা মূল উদ্দেশ্য আছে কি আমি মাজে মাজে ইয়াত ৰিট্ৰিট কৰোঁ। আমাৰ যি ৰেগুলাৰ ভাই বেহেন চাৰিওফালৰ পৰা মানে আহে। আৰু এনেকৈ যেনেকৈ এতিয়া আপুনি দেখিছে য়োগৰ প্ৰগ্ৰাম চলি আছিলে, ক্লাছ হৈ থাকে, তেনেকৈও প্ৰগ্ৰাম কৰোঁ। আৰু যি এতিয়ালৈকে মানে আমাৰ সম্পৰ্কত অহা নাই সিহঁতকো মাতি আমি মাজে মাজে যেনেকৈ ট্ৰেইনিং দিওঁ, কেনেকৈ আমি নিজকে আমাৰ জীৱন ষ্ট্ৰেছ ফ্ৰী হ'ব পাৰে, কেনেকৈ আমি নিজৰ ভিতৰত পজিটিভ চেঞ্জ আনিব পাৰোঁ, এই চব কথা লৈ আমি মাজে মাজে তেনেকৈ ৰিট্ৰিটো মানে তেনেকৈ পাতোঁ। ইয়াৰ কাৰণে মানে ৰেজিডেঞ্চ ৰিট্ৰিটো হয় আৰু তেনেকৈও হয়, অহা যোৱাও তেনেকৈ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ কাৰণে এইটো ইমান ডাঙৰকৈ বনাবলগীয়া হ'ল। আৰু আমি দেখিছোঁ আপোনালোকে ইমান মেডিটেশ্যনৰ পৰা আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত অনুষ্ঠান হৈ আছে। ব্ৰহ্মাকুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিদ্যালয়ৰ যিখিনি মূল উদ্দেশ্য ৰাইজৰ মাজত আপোনালোকে কেনেকৈ দিব বিচাৰিছে কওকচোন, কি ইয়াতে আছে? আচলতে মানে ৰাইজৰ ভাৱে দিবলৈ আমাৰ বিভিন্ন প্ৰগ্ৰাম যেনেকৈ হৈ থাকে। কেতিয়াবা আমি এক্সিবিশ্যন কৰোঁ, আমি যেনেকৈ কনফাৰেঞ্চো কৰোঁ, এনেকৈ গেট টুগেডাৰো প্ৰগ্ৰাম কৰোঁ। মানুহক বিভিন্ন মানে যেনেকৈ প্ৰগ্ৰাম কৰি সিহঁতক মাতোঁ আৰু ইহঁতক মানে কি বুজায় ইয়াতে যে সকলো মানুহ ইয়াত গোট খায়? মূল উদ্দেশ্য হয় আমাৰ মানুহৰ ভিতৰত সকাৰাত্মক পৰিৱৰ্তন কেনেকৈ হয়। বৰ্তমান সময় যেনেকৈ আপুনি দেখিছে বেছিভাগ মানুহৰ নেগেটিভ চিন্তন চলি থাকে আৰু নেগেটিভিটিৰ কাৰণে সি মানুহ বেছিভাগ দুখী আৰু অশান্ত হৈছে। যেনেকৈ আৰম্ভণিত আপুনি ক'লে মানুহ শান্তি বিচাৰি আছে, কাৰণ শান্তি যদি বিচাৰিছে কেতিয়াবা আমাৰ ওচৰত শান্তি আছিলে, অশান্তিৰ কাৰণ কি এইটো আমাক খুজিব লাগিব। তো অশান্তিৰ কাৰণ হৈছে আমাৰ বডি কনচিয়াছনেছ, আৰু বডি কনচিয়াছৰ কাৰণেই আমাৰ ভিতৰত বহুত প্ৰকাৰৰ নেগেটিভ থটছ চলি থাকে। আৰু নেগেটিভ আৰু 2 নম্বৰ হৈছে ৱেষ্ট থট, তাৰ কাৰণেই মানুহ বেছি অশান্ত হৈছে। তো নেগেটিভ আৰু ৱেষ্ট থটছক আমি কেনেকুৱা পজিটিভ কৰিব পাৰোঁ এইটো মেডিটেশ্যন ইয়াত শিকোৱা যায়। লগত ইয়াত মানে নলেজো দিয়া যায়, আধ্যাত্মিক শিক্ষাও দিয়া যায়। মই কোন ক'ৰ পৰা আহিলোঁ, ক'লে যাম, এই সৃষ্টিৰ আদি মধ্যান্তৰ কাহিনী কি, কৰ্ম অকৰ্ম বিকৰ্মৰ গতি কি কৰিলে মানুহৰ পাপ বনি যায় যাৰ কাৰণে আমি দুখ ভোগিবলগীয়া হয়, কি কৰিব পাৰোঁ যাৰ কাৰণে আমি মানুহৰ কল্যাণ কৰিব পাৰোঁ, ভাল কৰিব পাৰোঁ, এই চব শিক্ষা ইয়াত দিয়া যায়। কিন্তু ভগৱানে মই এনে আপোনাক সুধিছোঁ আৰু ভগৱানে পৃথিৱীলৈ পঠিয়াইছে প্ৰথমে মানে খালীকৈ পঠিয়াইছে, আৰু তেখেতেতো ইয়াতে আমাক যুদ্ধ কৰিবলৈকে পঠিয়াইছে। এতিয়া আপোনালোকে কৈছে সেই যুদ্ধৰ পৰা চব আঁতৰি আহিব লাগে আৰু মানে গোটেই মায়া মোহ এৰি ইয়াতে আহিব লাগে, তেনেকুৱা কথা আছেনে?
एक्चुअली देखा जाए भगवान आमाक जितिया ये पृथ्वीत पठाईसिले तितिया ये पृथ्वी स्वर्गोर निसिना सुख शांती समृद्धीत आसिले पवित्र दुनिया आसिले तितिया ये पृथ्वीत देवी देवता राज्य आसिले जी आमी আজি শুনো पढ़ू कि भारत केতিয়াबार होनर सराय आसिले एकदम माना यात गाय और ছাগলী একই ঘাটত মানে বাঘ और ছাগলী একই ঘাটত পানী খাই আছিলে কিন্তু বৰ্তমান হামে কি হৈ গৈছে দো ভাই ককাই একেলগে একই পাকঘৰত ভাত খাব নোৱাৰে এনেকা পৰিস্থিতি যেতিয়া হৈ গৈছে এই পৰিস্থিতি কোনে ক্ৰিয়েট কৰিছে আমি নিজেই ক্ৰিয়েট কৰিছো परमात्मा তো তেনেকা কৰা নাই परमात्मा তো আমাক বহুত ধুনীয়া সৃষ্টিত পঠাইছিলে কিন্তু আমি নিজৰ সংস্কাৰ বেয়া কৰি ললো অহংকাৰ বেয়া কৰা হোৱা কাৰণেই আছে বডি কনসিয়াস আমি নিজকে পাহৰি গৈছো মই কোন আসলতে আমি নিজৰ পৰিচয় পাহৰিলো নিজৰ পিতা परमात्माক পাহৰিলো তাৰ কাৰণে আমাৰ কৰ্ম যি আছে ये विकर्म হৈ আছে পাপ কৰ্ম হৈ আছে তো লাহে ধীৰে তেনেকা কৰোঁতে কৰোঁতে সংসাৰত ইমান পাপাচাৰ অত্যাচাৰ বঢ়ি গৈছে শাস্ত্ৰত প্ৰত্যেক ধৰ্মত কোৱা গৈছে कि যেতিয়া পৃথিৱীত অতি ধৰ্মৰ গ্লানি হয় তেতিয়া परमात्मा পৃথিৱীত আহি অৱতৰিত হয় কুৰাণতো কৈছে যেতিয়া কিয়ামতৰ সময় হয় তেতিয়া খুদা আহে और যোনে পাপ কৰিছে ইহঁতক জান্নাত লৈ যায় যোনে পুণ্য কৰিছে ইহঁতক বহিষ্ঠত লৈ যায় তেনেকা মানে কুৰাণতো কোৱা গৈছে তো এনেকুৱা সময় কেতিয়াবা তো হয় না যেতিয়া खुदा आहे पृथ्वी तो इतिया परमात्मा पिता ये अति धर्म गिलानीर हमें आही उपस्थित होइसे और जोने पाप करिसे इহঁতক মানে প্ৰায় प्रत्येक मनुष्य आत्मा पापी करि আছে মানে বেয়া কামই কৰি আছে ইহঁতক কেনেকা পুণ্য কাম কৰিবলে মানে আগ বঢ়াব লাগে জ্ঞান দিব লাগে এটো শিক্ষা परमात्मा আমাক এই সংস্থাৰ দ্বাৰা দিয়াই আছে আৰু আপোনাৰ আমি বেক সাইডে এগৰাকী ব্যক্তি দেখিছো তেখেতৰ বিষয়ে আপুনি অকমান কওকচোন পিছফালে যি আমাৰ আছে এখেতে হ'ল প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মা যে আৰম্ভণিত মই কৈছিলো কেলে परमात्मा হ'ল নিৰাকাৰ তেখেতৰ শাৰীৰিক आकार कोनो ना आमार মানুহৰ নিচিনা কোনো आकार নাই তে নিৰাকাৰ জ্যোতি বিন্দু স্বৰূপ अब জ্যোতি বিন্দু परमात्मा আমাক জ্ঞান কেনেকৈ দিব তেখেতক কিবা আধাৰ লাগে গতিকে তেওঁ জ্ঞান দিবলে এক সাকাৰ মনুষ্যৰ আধাৰ লৈছিলে যে নাম হ'ল তেখেতৰ নাম আছিলে দাদা লেখৰাজ তেওঁ হীৰা জৱাহৰাতৰ ব্যাপাৰী আছিলে কিন্তু ভক্তি ভাৱ বহুত বেছি আছিল তেওঁ নিজৰ জীৱনত বাৰে গুৰু কৰিছিলে যেতিয়া পূজা পাঠ নকৰে তেতিয়ালৈকে একো নাখায় বহুত ভক্তি ভাৱ আছিলে তেখেতৰ শৰীৰত परमात्मा 1936ত প্ৰৱেশ কৰি তেখেতৰ মুখেৰে বহুতখিনি জ্ঞানৰ কথা ক'লে তো এখেতৰ পাছত परमात्मा নাম দিলে পিতা শ্ৰী প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মা যাক কোনোবা এডম কয় বিভিন্ন ধৰ্মত বেলেগ বেলেগ নাম দিয়া যায় কোনোবা আদম কয় কোনোবা আদিদেৱ কয় প্ৰথম ব্যক্তি মানুহ বুলি কয় এখেতেই তো এখেতৰ দ্বাৰা परमात्मा জ্ঞান আৰু যোগৰ শিক্ষা দি মানুহৰ জীৱনত পৰিৱৰ্তন আনে কি পৰিৱৰ্তন আনে যে পূৰ্ণ স্বভাৱ সংস্কাৰ হৈ গৈছে বেড হেবিটছ যি মানুহৰ ভিতৰত আহি গৈছে কেনেকৈ বেড হেবিটছ নাইকিয়া হ'ব जागृत হ'ব তাৰ দ্বাৰা হি এই সৃষ্টি আকৌ কলযুগৰ পৰা হতযুগলৈ ট্ৰান্সফাৰ হ'ব পাৰে স্বৰ্গৰ নিচিনা আকৌ দুনিয়া বহিষ্ঠৰ নিচিনা আকৌ দুনিয়া এইটো বনিব পাৰে আৰু ইয়াতে মই আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ ইয়াত ধৰ্মৰ কথা আছে নি যেহেতু কিছুমান মানুহে হয়তো এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত পটককৈ আহিবলৈ অলপ হেজিটেট কৰিব পাৰে আপুনি কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত একচুৱেলি কোনো ধাৰ্মিক সংস্থা নহয় ইয়াত আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিয়া যায় ইয়াৰ কাৰণে ইয়াৰ নাম হৈছে প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মা কুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভাৰ্চিটি হয় এক প্ৰকাৰৰ যে গোটেই সংসাৰৰ মানুহ কোনো ধৰ্মৰ হয় কোনো জাতি হয় কোনো বৰ্গৰ হয় প্ৰত্যেক মানুহ ইয়ালৈ আহিব পাৰে কোনো এনেকা বিভাজন নাই আমুক আহিব আমুক নাহিব তেনেকৈ সবেই আহিব পাৰে কিন্তু परमात्मा হ'ল সকলো আত্মাৰ পাৰলৌকিক পিতা কোনো ধৰ্মৰ পিতা বুলি তেখেতে কোৱা নাই তো গতিকে সকলো মানুহ ইয়ালৈ আহিব পাৰে আৰু এইটো আধ্যাত্মিক শিক্ষা ইয়াত কোনো ধাৰ্মিক শিক্ষা নহয় আৰু আমি ইয়াতে এতিয়া দেখিছোঁ আপোনালোক সবেই বগা ড্ৰেছ পৰিধান কৰি আহিছে বেলেগ ড্ৰেছ কৰি আহিলে ইয়াত আহিব নোৱাৰিব নি এনেকুৱা কোনো কথা নাই বেলেগ ড্ৰেছ আমাৰ শাৰীৰিক পোশাকৰ লগত কোনো তেনেকা কানেকশ্যন নাই কিন্তু বগা ড্ৰেছ এনে
কোৱা যায় পবিত্ৰতা আৰু শান্তিৰ প্ৰতীক হয় এই গতিকে নিজৰ পৰিৱেশ অলপ মানে ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ আমি আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটি এইটো এনেকা ক'ব পাৰোঁ ইউনিফৰ্ম হয় তো যেনেকৈ প্ৰত্যেক স্কুল কলেজৰ ইউনিফৰ্ম এনেকৈ ইউনিফৰ্ম নিচিনা বাকী কোনো কালাৰ ড্ৰেছ পিন্ধিলে কোনো আহিবলৈ কেনেকুৱা কোনো মানা নাই শাৰীৰিক পোছাকৰ লগত কোনো তেনেকুৱা নাই হয় আমাৰ লগত আৰু এগৰাকী ব্যক্তি আছে জানিম খুব সুন্দৰভাৱে কথা কৈছে কিন্তু সকলো মানুহ ইয়াত আহিব পাৰে খুব এটা শান্তিৰ পৰিৱেশ সুন্দৰ পৰিৱেশ নিজক একদম বিলীন কৰি দিব এটা পৰিৱেশ ইয়াত আছে আমি সকলো আহিব লাগে আচলতে মোৰ এই ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকক এইটো কথা জনাব বিচাৰিছোঁ ডিমৌত স্থিত এই বিশ্ববিদ্যালয় ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়খনে আপোনালোকে আহক এবাৰ আহিলে আপোনালোকে গম পাব ইয়াত কি হৈ আছে হয় আমাৰ লগত মুম্বাইৰ দিল্লীৰ পৰা অহা এগৰাকী ব্যক্তি আছে বিকে ৰাকেশ ভাই আমি অলপ আগতে দেখিছিলোঁ তেখেত ৰাজযোগী বিকে ৰাকেশ ভাই ৱেলকাম টু আৱাৰ ইউটিউব চেনেল প্ৰথমে আচলতে তেখেতৰ লগত কথা পতাৰ আগতে মই কেইটামান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ মই ইয়াতে যেতিয়া আহি পাইছোঁহি তেওঁ খুব সুন্দৰভাৱে মেডিটেশ্যন কৰিছে এটা নীৰৱ পৰিৱেশত ইমানখিনি ইয়াত মানুহ আছিলে মানুহখিনিয়ে তেখেতৰ কথা খুব একাগ্ৰতাৰে শুনিছে আৰু তেখেতৰ লগত আমি অকণ কথা পাতিব বিচাৰিম হিন্দীত ক'ব লাগিব অকণমান তেওঁ হয়তো নুবুজিব সেইকাৰণে पहले आपको हम पूछना चाहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय यहाँ शुरू कहाँ से होता है ये पहले इनोवेशन ये कहाँ से हुआ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शुरुआत सिंध हैदराबाद जो अभी पाकिस्तान में है 1936 में वहाँ से हुई थी पाकिस्तान से वो बाद में पाकिस्तान बना 1947 में 1936 में डिवीज़न नहीं था वो भारत ही कहलाता था अच्छा पहले वहाँ हुआ था वहाँ से इसका शुरुआत हुआ था हाँ। वो निराकार परमपिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को अपना मीडियम बना के जिनकी तस्वीर आप पीछे देख रहे हैं उनके माध्यम से ये आध्यात्मिक शिक्षा संस्थान खोला ताकि मानव को एक श्रेष्ठ संस्कार दिए जा सकें ऐसा लक्ष्य रखकर क्योंकि हम सब सुनते आए हैं कि परमात्मा को संकल्प उठा नई सृष्टि रचने का तो नई सृष्टि रचने के लिए ऑर्गेनाइज वे में कैसे वो किया जाए तो परमात्मा ने आकर इनको अपना मीडियम बनाया और इनके माध्यम से एक जरिया और उसके माध्यम से ये कार्य प्रारंभ किया अभी ये जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का जो सेंटर है कहाँ पे है ये ऑल ओवर वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पर 145 कंट्रीज़ में ऑफिशियल सेंटर 5000 के करीब हैं एंड 4000 सेंटर्स नॉन ऑफिशियल वे में चल रहे हैं मींस जो छोटे सेंटर्स के रूप में वहाँ भक्तों का अगणन वो जो वहाँ रहना चाहिए जी है आप लोगों का रेस्पॉन्स मिलता है क्या यस बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स है हर जगह क्योंकि आज आप देख रहे हैं बहन दुनिया में अशांति दुनिया में दुख परेशानी स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है और ये एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो फ्री ऑफ चार्ज निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा कर रहे हैं और आज यूनिवर्स पर मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में ज्ञान हो चुका है कि यहाँ पे ऐसा ज्ञान मिलता है जिससे तनाव मुक्त हुआ जा सकता है जिससे जीवन में शांति का अनुभव किया जा सकता है जिसमें आत्मा को रिचार्ज किया जा सकता है उसमें आध्यात्मिक बल पैदा किया जा सकता है तो ये मालूम होने के कारण बहुत अच्छे तरीके से लोग आ रहे हैं यहाँ पर सीखते हैं हर सेंटर में सभी फैकल्टी मेंबर्स बिजी हैं यहाँ एक बात है वो मैरिड लोग आता है कि नहीं ये एक र्यूमर है जी बहुत लोग पूछता है कि वहाँ नहीं जाएंगे वो मैरिड लोगों का स्थान नहीं है वो क्या बोलेगा इसके बारे में नहीं यहाँ पर हर तरह के कैटेगरी के लोग आते हैं बैचलर भी मैरिड भी ओल्ड एज वाले सभी तरह के लोग आते हैं क्योंकि परमात्मा के सभी बच्चे हैं और जहाँ तक वैवाहिक जीवन का कंसर्न है उसका कंसर्न आध्यात्मिक ज्ञान से नहीं है कि भाई मैरिड पीपल को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं चाहिए या बैचलर को ही चाहिए वैसे दुनिया में सबसे ज़्यादा अशांति बैचलर को है या मैरिड पीपल को मैरिड को तो फिर किसको चाहिए तो इसलिए यहाँ पर आप हमारे भाई बहनों को देखिए आकर यहाँ सभी घर बाहर से आने वाले हैं और मैक्सिमम घर से हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके प्यार से आते हैं तो मैरिड पीपल तो बहुत वेलकम किया है मतलब शांति सही जैसे 100% वहाँ सबको शांति मेंटल पीस क्योंकि घरों में थोड़ा सा रिलेशन गैप बढ़ता जा रहा है आपस में टकराव है संस्कारों का तो यहाँ आने से हस्बैंड वाइफ जब दोनों ही एक एजुकेशन ले रहे हैं
तो उस लेवल पे आध्यात्मिक जागृति आने से दोनों संस्कारों को मिला के एडजस्ट करके चलते हैं, टकरा के नहीं। आपने थोड़ी देर पहले बोला था वो जो गैजेट हम लोगों के बीच में जो गैजेट है वो मोबाइल हमारा सबसे ज़्यादा माने डेंजरस थिंग्स टू फॉर अस। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? ये नहीं होने से आजकल वो जमाना चलता ही नहीं है। ये डिजिटल सिस्टम का टाइम चल रहा है ना। मेरा कहने का भाव ये था, मोबाइल खराब नहीं है, लेकिन सोसाइटी में आज मनुष्य के अंदर नेगेटिविटी, कमजोरियां इतनी ज़्यादा आ गई हैं, वो उसके हाथ में कोई भी चीज़ आती है उसको नेगेटिव वे में यूज़ करता है। मोबाइल से हम इतनी सारी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। कोविड के समय अगर मोबाइल नहीं होता तो सिस्टम नहीं चलता था। सारी स्टडी, सारी कॉलेज की स्टडी, सारा ऑफिशियल वर्क आज भी चल रहा है। तो वो तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो कहने का तात्पर्य ये था कि हम उसको पॉजिटिवली यूज करें, देन इट इज गुड। अगर हम पॉजिटिवली नहीं करते वो हार्मफुल है हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। छोटे छोटे यंगस्टर्स जो हैं मोबाइल के चक्कर में गलत रूट पर जा रहे हैं, गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। कारण क्या है कि उसमें नेगेटिव इन्फॉर्मेशन जो उनको नहीं चाहिए इस एज में वो भी है। तो बुद्धि नेगेटिव होने के कारण वो उसको पॉजिटिव यूज ना करके ये कर रहे हैं। तो स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन ये पावर उनको देता है कि जब तक वो पावर मिले कि मुझे इसमें केवल पॉजिटिव ही लेना है ना, उसी के लिए यहाँ पर ये ट्रेनिंग दी जा रही है। और हमने 5 दिन का एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा कि आप करके देखिए आपका माइंड उधर अट्रैक्ट होता है या नहीं, और आपका उस पर होल्ड होता है या नहीं। तो वो पावर अपने अंदर ले लीजिए। अगर 5 दिन आप में कामयाब हो जाते हैं मोबाइल को पॉजिटिवली यूज करने के लिए, देन यू मेक योर लाइफस्टाइल लाइक दिस, है ना। तो उसके लिए तो फिर उसका अधीन होकर के नेगेटिविटी से यूज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय, यहाँ हर लोगों को आना क्यों चाहिए? यहाँ इसलिए आना चाहिए क्योंकि चरित्र का उत्थान करने का एजुकेशन सेंटर, जीवन को जीने का एक सुंदर तरीका बताने का सेंटर, निस्वार्थ भाव से मैंने अपने पर्सनल लाइफ में कहीं और नहीं देखा। जहाँ मनुष्य को चरित्र का दान दिया जा रहा है। आज दुनिया के अंदर अर्निंग सोर्स बहुत हैं, बहुत बड़े बड़े एजुकेशन सेंटर है जहाँ पे आपको फाइनेंशियली आगे जाने के लिए बहुत सारी ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं। लेकिन आप देख रहे हैं एक कॉलेज से एक बच्चा मेडिकल इंस्टीट्यूट से MBBS डॉक्टर बन जाता है, MD सर्जन बन जाता है, एक M.Tech B.Tech के इंस्टीट्यूट से एक इंजीनियर बन जाता है। लेकिन क्या वो एक चरित्रवान व्यक्ति भी बन जाता है? अगर वहाँ से ये सब करने के बाद वो रिश्वत लेता है, वहाँ से निकलने के बाद लोगों की निस्वार्थ भाव से मेडिकली ट्रीटमेंट नहीं करता, वो सबसे पहले अपना मेडिकल का खर्चा निकालता है, तो वो तो चरित्र नहीं है, वो तो समाज के लिए सेवा नहीं है। तो ब्रह्मा कुमारी जो एजुकेशन सेंटर है, लाइफ लर्निंग ट्रेनिंग सेंटर, ये एकमात्र यही एक सेंटर है जहाँ पे लोगों को चरित्र दिया जा रहा है ना, एक सुंदर चरित्र कि मानवता का जीवन क्या होता है और हमें एक दूसरे के लिए कैसे जो हमारी योग्यताएं हैं, उनको यूज करना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर सबको आना ही चाहिए क्योंकि वो चीज़ यहीं मिल रही है। यहाँ और एक चीज देखा है जो खाना है यहाँ का, जी, जी। पूरा वेज है जी। ये जो मांस मछली है वो क्यों नहीं खाना चाहिए, ऐसा क्या है इसमें? क्योंकि बहुत समय से बहन हम लोग ये सुनते भी आ रहे हैं, बट हमारा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था, है ना, जब से हम ये ज्ञान में नहीं थे कि जैसा अन्न वैसा मन, है ना। और आज आप देख रहे हैं हर मानव का मन भटक रहा है। लेकिन अगर मन भटक रहा है तो कॉज एंड इफेक्ट के सिद्धांत के अनुसार कुछ कारण तो होगा कि मन भटक क्यों रहा है। तो आपने देखा आज से 30-40 साल पहले दुनिया के अंदर रेस्टोरेंट्स वगैरह होते थे, ज़्यादा जंक फूड होते थे, बच्चे माँ के हाथों का भोजन प्यार से खाते थे। उस समय के बच्चे ज़्यादा कैरेक्टर वाइज और हेल्थ वाइज अच्छे थे या आज के? उस समय। आज सारा समय ऑनलाइन सिस्टम पे रेस्टोरेंट से भोजन आ रहा है। उनका रेस्टोरेंट वालों का भोजन बेचने का एक ही सिद्धांत है, हम कमाएं तुम खाओ, है ना। लेकिन वो भोजन किस पद्धति में बना रहे हैं, अपने थॉट एनर्जी उनकी क्या है उस समय, वो बड़ी नेगेटिव है। अगर नेगेटिव एनर्जी में रहकर क्रोध में, अशांति में, चिंता में कोई व्यक्ति भोजन बना रहा है, उसके वाइब्रेशन
भोजन में जा रहे हैं। और जब वो व्यक्ति कोई दूसरा खाएगा तो उसके वाइब्रेशन से उसके अपने संस्कार भी खराब होंगे, ना चाहते हुए भी उसका चिंतन नेगेटिव चलेगा और वो हैरान होगा मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। अन्न का मन पे प्रभाव। और उसके लिए आपने सुना भी होगा, कहावत बहुत अच्छा है कि जब गौतम बुद्धा का एक जो शिक्षा लेने वाला था और जब वो जा रहा था तो उसको कहा गया कि तुम अनेक जगह से ये जो वो साधु लोग मांगते हैं ना, मांग करके अपनी वो लेकर के आए दीक्षा देने के लिए। तो बहुत अच्छा उसमें एग्जाम्पल बताते उनकी बायोग्राफी के अंदर कि वो बच्चा एक सेठ का बच्चा था, बहुत बड़ी रिच फैमिली से था, इकलौता बच्चा। तो जब वो बच्चा बचपन से चला गया, उसके माँ बाप बहुत परेशान थे कि हमारा एक ही बच्चा था और वो इस संन्यास मार्ग में चला गया। तो एक वैश्या थी, उसने कहा कि मैं आपके बच्चे को वापस ला सकती हूँ, मुझे क्या देंगे? तो उसने कहा हम आधी प्रॉपर्टी दे देंगे। राइट। वो बच्चा जब गली गली में भोजन भीख मांगने जा रहा था उस संन्यास धर्म के अनुसार, तो उसने जब पहले दिन में वो मांगा तो बाहर बैठ करके उसने खाया। और वो भोजन किसने बनाया था? माने वो भोजन वेश्या ने बनाया। राइट। मेरा फोकस किसी नारी के ऊपर नहीं है, है ना, मैं उस वृत्ति के ऊपर जा रहा हूँ कि जो मानसिक भावना थी वो कितनी अशुद्ध होती है ना। तो उसने वो खाया और नेक्स्ट डे उस बहन ने, उस नारी ने, जब वो दोबारा भीख मांगने आया तो वहाँ बच्चे कुछ खेलते थे। उन बच्चों को कहा जब वो सन्यासी भोजन के लिए आए तो वो यहाँ बैठ के खाने लगे, तो मिट्टी उड़ाना। तो उन्होंने मिट्टी उड़ाया। उसने कहा महाराज ये तो आपके खाने की जगह नहीं है, आप अंदर आ जाइए। तो सेकंड डे उसको अंदर ले गई। अब धीरे धीरे थर्ड डे आया और थर्ड टाइम जब वो भोजन खाने लगा, अब 2 दिन भोजन खाने से उसके मन में अशुद्धि आ गई थी, क्योंकि भोजन किसने बनाया था? अशुद्ध कर्म करने वाली एक आत्मा ने, एक नारी ने। अब तीसरे दिन जब उसने भोजन खाया, अब उसका मन कमजोर हो चुका था। आज हमारे शास्त्रों में ये बताए हुए उदाहरण ऐसे नहीं है, प्रैक्टिकल चीजें। और जब तीसरे दिन उस व्यक्ति ने वो भोजन खाया तो वो काम वासना के लिए तैयार हो गया। एक सन्यासी व्यक्ति। वहां फिर उनके गुरु ने, वहां गौतम बुद्धा ने अपने दृष्टि के बल से उसको बचाया वहां से। तो मन इतना प्रभावित होता है अन्न से, इसलिए हम लोग निरामिष भोजन खाते हैं, क्योंकि हम राजयोग मार्ग के विद्यार्थी हैं। तो हमारा मेडिटेशन में कंसंट्रेशन बढ़े, डिस्ट्रैक्ट ना हो, उसके लिए हम थोड़ा सा डिसिप्लिन फॉलो करते हैं और उससे मन को बहुत शांति मिलती है। हम जब यहाँ एंट्री कर रहे हैं तो सब लोग यहाँ एक टीका लगाते हैं, ये क्यों लगाते हैं? ये तिलक जो है जस्ट ए ट्रेडिशन, वैसे तो तिलक लगाना क्योंकि पूजा पाठ आध्यात्मिकता में होता है, बट यहाँ जो तिलक लगाते हैं वो आत्मस्मृति का, कि हम सब इस शरीर को चलाने वाली एक आध्यात्मिक ऊर्जा आत्मा है। हम यहाँ पर मेडिटेशन के लिए आए ना, तो हमें याद रहे ये तिलक यहाँ क्यों लगाए, वो तिलक हमें याद रहेगा, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, हम सब सोल हैं और हम शांत, पवित्र, आनंद, प्रेम का स्वरूप हैं। इस स्मृति को बनाए रखने के लिए ये तिलक दिया जाता है, उसकी यादगार है। হয়, এয়াই আছিল আচলতে বি কে ৰাকেশ ভাই। মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে এখেতসকলে ইয়াত টাইটেল ইউজ নকৰে, ভাই আৰু বেহেন ইউজ কৰে। এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, বৰ ভাল লাগিলে ইয়াত আহি, মই কৈছোঁৱে। আৰু আপোনালোকে এই মোৰ ব্লগটো চালে এটা কথা আপোনালোকে মন কৰিব, ইয়াত আপোনালোকে যদি ভাবিছে যে ফেমিলিজ মেম্বাৰবিলাক ইয়াতে আহিব নোৱাৰিব, তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। সকলো ধৰ্মৰ লোক, সকলো মানুহ, সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা বুঢ়াৰ পৰা, ফেমিলিৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহ ইয়াতে আহি, ইয়াৰ আচলতে এই বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ এটাই মটো, এটাই আচলতে উদ্দেশ্য, মনৰ শান্তি। আৰু মনৰ শান্তিৰ কাৰণে ইয়াত এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, এটা বাতাবৰণ এটাৰ সৃষ্টি কৰি থৈছে। আপোনালোকে আহি ইয়াত মেডিটেশ্যন হয়, যোগ বাসনা হয়, সকলোখিনি ইয়াতে আমি দেখা পাইছোঁ। এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ। আৰু আপোনালোকৰ যদি আজি আমাৰ এই ব্লগটো চাই যদি ভাল লাগিলে, তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। তেতিয়া সকলো মানুহ ইয়াতে আহি পেলাই নিজৰ শান্তি আৰু নিজৰ মনটো শান্ত কৰিব পাৰিবলৈ আহিব পাৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ।